Praise and glory be to our God. और परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। Just like we read the verse today, our ways and our thoughts are much lower than what God's ways and thoughts are. और जैसे आज हमने वचन का मनन किया कि हमारा विचार और हमारी सोच परमेश्वर के विचार और उससे सोच में बहुत अंतर है। I just want to share a small testimony as to encourage every brother and sister today. और मैं छोटी सी एक गवाही बांटना चाहता हूँ ताकि सारे भाई और बहन को प्रोत्साहन में दे सकूं। In 2019 was the first time when I came to CFC Church in Sharjah. और 2019 वर्ष में मैं पहली बार शारजा के कलीसिया CFC में जुड़ा था। And the way that I came to CFC Church was in 2019 there was a lot of work pressure where I was working, and at my workplace I noticed that there was so much anger in me. All through those years I have never seen that anger in my life, and in 2019 I was seeing that anger in my life. और मैंने कलीसिया में आने का कारण ये हुआ कि 2019 में मैं जहां पर काम कर रहा था इतना गुस्सा और क्रोध मेरे अंदर आ रहा था, मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन 2019 में काम करने के समय मैंने वो अपने आप में देखा। And that really challenged me because it was only anger, and I could not control that anger by myself. और ये मुझे बहुत चुनौती दिया क्योंकि ये तो सिर्फ गुस्सा का बात था, लेकिन मैं खुद के गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। Every Friday there we used to have Sunday services on Friday, so every Friday I used to go to church and come back. I never felt any change. There was no peace in my heart. I felt like as I'm going I'm coming back. और हर शुक्रवार को वहां पर सभा होती, जैसे यहाँ रविवार को होती है, और हर शुक्रवार के सभा में मैं वहां जाता था और मैं वापस आता था, लेकिन मैं अपने जीवन में कोई भी बदलाव को अनुभव नहीं कर पा रहा था। I had heard small little preachings of Brother Zach whenever he visited to Sharjah. I have attended the special meetings but have never followed him very seriously. भाई जैक कुनन का मैंने एक प्रचार सुना था जब वो शारजा में आकर कहे थे तब, लेकिन मैंने उनके समाचार को सुना, लेकिन मैंने उनका अनुसरण नहीं किया था। At that point I thought, okay, I found that there was a church in Sharjah and I wanted to go there and see for myself what they were teaching. और लेकिन वहां पर शारजा में वहां पर उनका कलीसिया था और मैं जाना चाहता था वहां पर जाकर देखूं कि वो लोग क्या सिखाते हैं। And right from the first week the message was anger is sin. और पहला ही सप्ताह जब मैं वहां पर गया और परमेश्वर का वचन ऐसा था कि probably I've read that many times in the verse, but it never came to me so much directly when I heard there for the first time. मैंने कई बार ये वचन को मनन में देखा है, पढ़ा भी है, लेकिन उस दिन जब वो परमेश्वर का वचन मेरे पास आया तो बहुत ही प्रोत्साहन और चुनौती के साथ मेरे हृदय में छिप गया। And every week from then on I used to go to church to listen to what they were saying and preaching. और हर सप्ताह में जाने लगा, मैं सुनना चाहता था कि वो और मुझे क्या सिखाएंगे और मैं क्या वहां से सीख सकूं। And little by little many of the things that were in my heart were being exposed and revealed, not exposed to everybody else but to myself. लेकिन वहां जाने के बाद धीरे धीरे करके मेरे भीतर ही अंदर से और ऐसे बातें मुझ पर प्रकट होने लगी, लोगों पर नहीं लेकिन मुझ पर ही प्रकट होने लगी सारी बातें। That is when I started to go to God and say, Lord, and these teachings were very hard and difficult for me to accept. और तभी मैंने परमेश्वर के पास जाकर कहा, पिता, और तब ये सारे शिक्षाएं जो मैं सीख रहा था ये बहुत ही मेरे लिए ठोस भोजन के समान था। Just like there is an instance in John chapter 6 where Jesus was preaching to the disciples and there were many people who left because the teaching was hard. और जैसा हम यूहन्ना अध्याय 6 में देख सकते हैं जहाँ यीशु लोगों को प्रचार करता था और वो प्रचार थोड़ा कठिन था और उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, इस कारण उन्होंने यीशु को छोड़कर चले गए। And Jesus turns to the other his close disciples and also tells them, if you want to leave you can also leave. तब यीशु मसीह अपने चेलों के पास जाकर कहता है कि ये क्या तुम भी जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। And
That is when Peter says, Lord, where will we go? You have the words of eternal life. और इसी समय पतरस कहता है कि यीशु मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, तेरे पास ही तो अनंत जीवन है। That was an inward cry that I had at that point. Lord, where will I go? Lord, if it is you who is really speaking to me, then give me the heart to accept all these truths. और उसी समय ये शोकित हृदय लेके मैं प्रभु से कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, तेरे अलावा मेरा कौन है, मैं तेरे पास ही आना चाहूंगा। And little by little, the Lord, in His mercy and His goodness, led me throughout this past years. और धीरे धीरे कर परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी कृपा से मुझे इन दिनों में चलाता आया। Also, after our marriage, it was almost 4 to 5 years. We did not have a child. और विवाह के 4 से 5 साल तक हमारी कोई संतानें नहीं थी। And when I started going to CFC, until that moment, there was always a burden in my heart, my wife's heart, that we were not having a child. We used to pray for it. Many people prayed for us, and we always had this burden in our heart. और लेकिन CFC में जाने से पहले कई बार हमने प्रार्थना की अपनी संतान के लिए, कई लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। And when we started going to CFC, all the attention of my heart turned somewhere else. लेकिन जब मैं CFC में जाने लगा, मेरा ध्यान कहीं और ही तरह लगने लगा। And this verse that is in Matthew chapter 6, verses 33. Seek first the kingdom of God, and all these things will be added to you. और ये वचन जो मत्ती अध्याय 6 के 33 में लिखा है, तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो और सब चीज तुम्हें दिया जाएगा। That was something that I could taste at that moment when I was searching for the things that are eternal, the things that are righteous, the things that would last. All the other things just seem to being added to my life. और तब मैंने ये वचन को अपने जीवन में अनुभव किया। मैंने चाहा परमेश्वर का राज्य की खोज करो, उसको चखूं और उसका स्वाद को अपने जीवन में अनुसरण करूं, तब ये सारी चीज मुझसे जुड़ने लगे। The discouragement of not having a child was not there in my heart, my wife's heart. और निराशापन जो मेरे पास संतान नहीं है, ना मेरे हृदय में रहा, ना मेरी पत्नी के हृदय में रहा। And at that point, God gave us our first child. और उसी समय परमेश्वर ने हमें पहली संतान दी। And the very next year, He also gave us a second one. और उसके ही दूसरे साल में परमेश्वर ने हमें दूसरा संतान दिया। And I until this point, and also further on, I want to be grateful to the Lord, for He made me wait for my child because I could believe on Him. और इस समय तक और आने वाले समय तक मैं प्रभु का धन्यवादित ही रहूंगा, क्योंकि उसने अपने समय पर मुझे संतान दिया और मुझे इंतजार कराया जब तक उसने मुझे दोनों संतानें न दी। With this small 2 incidents, I just want to share this with you, my brothers and sisters. ये 2 बातों के साथ यही मैं आप लोगों से बांटना चाहता था, ताकि आप प्रोत्साहन आपको मिल पाए। There are many things that we hear in our church, the truths that we hear in our church. बहुत सारे सच्ची बातें हम अपने कलीसिया में सुनते हैं। And there are many times these are just knowledge in our mind. लेकिन कई बार ये सारे बातें सिर्फ एक ज्ञान रहकर हमारे दिमाग में रह जाता है। But when will this become flesh and blood in our soul? लेकिन वो हमारा शरीर और लहू कब बन जाएगा हमारे शरीर में? When we are going through a trial, when God is taking through a challenge, a trial, that is when these words will become life in us. लेकिन जब परमेश्वर हमें कठिन रास्तों से ले जाता है, समस्याओं से ले जाता है, तभी ये सारे शब्द हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। And in that way, and that point, we can glorify God in a much greater way. और उस समय हम परमेश्वर का और ऊंचे रीति से उसके नाम को ऊंचा उठाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। So even this morning with this small sharing, I want to encourage each one of you brothers and sisters. I do not know your situation. और आज सुबह मैं आप लोगों को इस समय आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आप लोगों की समस्याओं को नहीं जानता। But Brother Zach always wants to stress this point, saying that our God is our heavenly Father. लेकिन भाई जैक हमेशा ये बात पर ध्यान देते हैं और हमसे कहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारा पिता है। No matter the times that I fail, no matter the times that I succeed, He is always my Father and He has a loving heart towards me. कितने बार भी हम गिर जाए या कितने बार भी हम थक जाए, वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। वो उसका हाथ हमेशा हमारी अगुवाई करने के लिए आता रहेगा।
it is only that we should not harden our hearts and we should always be humble enough to go in his presence and सिर्फ- fall down. सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि हमारे हृदय को हमें कठोर नहीं करना, लेकिन उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ हमें जाना जरूरी है। May these words bless each one of us. ये सारे शब्द आप लोगों को आशीष करे, ये मैं विचार करता हूँ। Thank you, brothers. Good morning, brothers and sisters. सुप्रभात भाई और बहनों। So, I'll be sharing on blessed are the poor in spirit. मैं आज बांटना चाहता हूँ, धन्य है जो आत्मा में दीन है। So, this particular topic has been in my mind for quite for around a month or so. और ये पिछले महीने से ये बातें मेरे मन में घूम रहा है। We'll just look at that verse in Matthew chapter 5. हम मत्ती अध्याय 5 में उस वचन की ओर बढ़ते हैं। So it's actually verse 3 when Jesus went up on the mountain and sat, the disciples came to him. और ये वचन 3 में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश देने के लिए चढ़े और उसके शिष्य उसका पीछा कर आए। And then the first thing he said was, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और तब यीशु मसीह अपना पहला शब्द ये कहते हैं, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। After that he says another 8 blessed are eight other things where it's mentioned blessed are these. और उसके बाद 8 और ही धन्य वचन वो कहते हैं और उन सारे वो बातों को वो धन्य कहते हैं। So we'll just have a word of prayer. तो आए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। Father in heaven, we just commit this word into your hands. Oh Lord God, you are the one who loves us, who cares for us. You're the one who feeds us, Lord God. We pray that you, Holy Spirit, that you would move in our midst, that every heart would be encouraged. Lord, I feel so empty, oh Lord God. I pray that you'll give us grace to be encouraged, oh Lord, by the word of God. In Jesus' name we pray. Amen. So, brothers and sisters, I realize that this particular verse, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. I've come to realize that I know very little about this. और भाई और बहनों, ये जो वचन धन्य है जो मन के दीन है, इसके विषय में मैं बहुत ही कम जानकारी रखता हूँ। I have explained this and I can explain it also. मैंने कई बार इसका प्रचार किया, वर्णन भी किया है और मैं करता भी हूँ। But actually speaking, I sometimes realize it's a mystery. और लेकिन कई बार मैं ये सोचता हूँ ये एक रहस्य है। I can think about it and I can explain it, but is that what it means really? लेकिन मैं इसके ऊपर ध्यान कर सकता हूँ और लोगों को प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये सच में हमारी लाइफ जीवन में ऐसा ही है? The other things are not so difficult to understand and the other things are not so difficult to understand and digest. अब बाकी धन्य जो वचन है उसको समझने के लिए ज्यादा कठिन नहीं होगी और उसे स्वीकारने के लिए हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हो पाएगी। So here it says, blessed are the poor in spirit. और यहाँ पर ऐसा लिखा है, धन्य है जो मन के दीन है। So blessed means internally happy. और धन्य का मतलब अंदरी तौर पर खुश होना। You don't need any circumstance, but there is an internal happiness. आपको कोई परिस्थिति की जरूरत नहीं, ये आनंद आपके अंदर से बाहर आएगा। That is that blessedness. और इसको परमेश्वर कहता है धन्य। Okay. So it's not dependent on any circumstance, but person is just happy. ये कोई परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति अंदरी तौर पर आनंदित रहता है। And the poor in spirit, what is that poor? और ये आत्मा में दीन होना, दीन होने का अर्थ क्या होता है? The Greek word for that poor, what is used, is called pitakos. और यूनानी शब्द जो वहां पर लिखा है उसको कहते हैं पिटोकोस। Because in the Greek there are 3 words for poor, and this word has been chosen. और यूनानी में 3 शब्द दिया है दीन के विषय में, लेकिन ये शब्द को उन्होंने चुनाव किया है। And what this word pitakos means is that the one who is bent or folded and one who is utterly destitute.
one who's utterly poor. और ये दीन का मतलब वहां पर ऐसा लिखा गया है जो एकदम ही गरीब है, उस व्यक्ति को कहा गया है। So the poor in spirit are those who are utterly helpless, और आत्मा में दीन होने का मतलब ये है एक व्यक्ति जो पूरी तरह से वो निसहायक है। and it is like their will is bent or folded. Their will is bent or folded. और उनकी जो इच्छा है पूरी तरह से दबाव और उसको पूरी तरह से मोड़ा गया है। We get a picture of a beggar actually. हम दृश्य देख सकते हैं एक भिखारी का। How the beggar, he is in total need and he doesn't come erect, he comes bent down. और वो एक भिखारी को जब हम देखते हैं वो किस तरह से हाथ फैलाकर हमारे साथ आता है, वो सीधे खड़े होकर नहीं मांगता, वो झुकता है हमारे सम्मुख में। So this is the picture that Jesus put, that a person who is such a person who is bent down and who is in utter need is the one who is poor in spirit and he is blessed. So यही चीज परमेश्वर ने दृष्टांत में दिखाया है, दर्शन में दिखाया है कि जो व्यक्ति आत्मा में दीन है वो ऐसा ही झुका हुआ होता है परमेश्वर के सम्मुख। So now when I think about such a the meaning and whether in my life it is there, I find it is not there. लेकिन जब मैं ये बातें जब जान गया और मैं सोचता हूँ क्या ये मेरे जीवन में है, तब मैं देखता हूँ कि ये क्या है मेरे जीवन में है। So the thing is, in the Word of God, and especially in the Old Testament, you speak when the poor are referred to. और पुराने नियम में हम देखते हैं जब गरीब, पुराने नियम में गरीब कहा गया है उसको, they are referred to people who are what do you say, afflicted or oppressed and needy people. They are called as the poor. पुराने नियम में जो जिनके पास कुछ नहीं होता था, जो पूरी तरह से हारे हुए और थके हुए होते थे और निर्बल रहते थे, उनको गरीब कहा गया है। So they may not be what do you say, monetarily poor, और उनका शायद पैसे की कमी नहीं उनके पास होगी, but they are oppressed, they are afflicted, they are needy. लेकिन वो पूरी तरह से टूटे हुए होंगे, पीसे हुए होंगे और वो जरूरतमंद होंगे। So these were considered as poor, and of course the people who have got lack of resources or monetarily poor are also poor. तो ये बात, इनको भी गरीब कहा जाता है, और उसी के समान जिनके पास पैसा नहीं होता, धन दौलत नहीं होता, उनको भी गरीब कहा जाता है। And in the Old Testament, about the rich, it was considered that the ungodly were mostly referred to as prospering. Ungodly were referred to as prospering. और जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, वो लोग पूरी तरह से आशीष पाते जाते और बढ़ोतरी उनके जीवन में हम देख पाते हैं। If you look in Isaiah 41 verse 17, अगर हम यशाया उसका 41 के वचन में 14 वचन देखते हैं, we will realize how the afflicted and needy are considered as, we can consider them as poor. वहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर लोग जो थे रहते थे। Isaiah 41 verse 17 says, the afflicted and needy are seeking water, but there is none. I, the Lord, will answer them myself. As the God of Israel, I will not forsake them. और हम देख सकते हैं यशाया अध्याय 41 का 17वां वचन, जब दीन और दारिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उसकी विनती सुनूंगा। So God says that He will not forsake. He will be with the afflicted and needy people. और परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं उनको त्याग नहीं दूंगा, मैं दीन और दारिद्र लोगों को संभालूंगा। Whereas in Psalm 73:12, लेकिन भजन संहिता 73 के बाद में ऐसा लिखा है, talking about the ungodly, और वहां पर जो परमेश्वर को मानते नहीं है उनके विषय में लिखा गया it है। says, behold, these are the wicked, and always at ease they have increased in wealth. और यहाँ पर ऐसा लिखा है, देखो ये 73:12. और हम 73 के बाद 12 वचन में देखते हैं, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। So when we think about the poor in spirit,
we can first of all think, it may be people who are very poor in material things. और कई बार हम आत्मा में दीन के विषय में सुनते, हम सोचते, हमें ऐसा सोच आता है कि शायद उसके पास कुछ चीज की कमी होगी। It could be also, that also can be called a poor, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसको भी गरीब कहते हैं। because in the Bible it says in James that God has chosen the poor of the world to be rich in faith. क्योंकि याकूब की पत्री में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने गरीबों को चुना ताकि उनको जो अमीर है लज्जित करे। Yeah, but when we consider this word poor in spirit, it also means those who are humble, meek and lowly. और अब लेकिन हम देख सकते हैं जहां पर आत्मा में दीन कहा गया है, वो दारिद्र और पूरी तरह से आत्मा में टूटा हुआ, पीसा हुआ व्यक्ति होता है। So we all all of us, whether we are poor in material things or we have enough, unless we are lowly, meek and humble, then only we can have this quality of being poor in spirit. लेकिन अगर हमारे पास कुछ है या नहीं वो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हम दीन और झुके हुए परमेश्वर के सम्मुख नहीं रहते हैं, तब हमारे अंदर वो जो आत्मा में दीन है वो बातें नहीं होगी। So normally what happens to us, brothers and sisters, is that even as we heard yesterday in the wonderful message by Joji Samuel, और कल शाम में हमने भाई जोजी सैमुअल से अद्भुत वचन परमेश्वर का सुना था। when we start out, we are all very humble and we are in need. जब हम शुरुआत में परमेश्वर के पास आते हैं तब हम बहुत ही दीन रहते हैं और हमें बहुत जरूरतमंद होते हैं। But I have seen it, as time goes on, we gain some knowledge, sometimes maybe some particular revelation we got on something, and we feel that others don't have that. और कुछ समय जाने के बाद हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ रेवलेशन जो प्रकटीकरण मालूम होता है, और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है आगे। And we feel that we know something more than some others. और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि दूसरों से ज्यादा ज्ञान बुद्धि मेरे पास है। And some sort of imaginations comes in our mind. और कई तरह की कल्पनाएं हमारे मनों में आकर बैठ जाती है। We can all just check that. ये हम सब लोग जांच सकते हैं। So what actually happens is we feel that we are something. क्या होता है असल में, हम सोचते हैं हम कुछ है। Not all the time, हमेशा नहीं, but sometimes at least. लेकिन कभी तो कभी ऐसा होता है। And that is not what is poor in spirit. और ये वो बात नहीं है जो हम आत्मा में दीन होने के विषय में सुनते हैं। The person who is poor in spirit is a constant thing. लेकिन जो आत्मा में दीन है वो हमेशा एक स्तर पर ही रहता है। He doesn't at some times feel that he is something. वो कई बार ऐसा नहीं सोचता, कई समय में थोड़ा ऐसा लगता है उसे। He doesn't feel that he knows more than others and has got that high mind. और वो कई बार ऐसा भी नहीं सोचता कि दूसरे को नीचा दिखाकर और मैं कुछ हूँ, ऐसा नहीं सोचता। It says poor in spirit. और वहां पर ऐसा लिखा है आत्मा में दीन। We consist of body, soul and spirit. हम एक मनुष्य के शरीर देह और आत्मा और रूह होती है। And the spirit is the one who is most internal. और जो हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो बहुत ही अंदर भीतर होता है। It is there we have to be poor. और वहां पर हमें दीन होना है। Not an outward something, but it is poor in the spirit. बाहरी तौर पर हमें गरीबी नहीं दिखाना, अंदरी तौर पर हमें गरीब होना है। I'm still searching and longing for the truth in this. और मैं आज भी खोज रहा हूँ सच्चाई इसके विषय में मेरे प्रति। Yesterday's message was an encouraging. और कल का जो वचन था बहुत ही प्रोत्साहित भरा था। And I know that when God starts showing some things, He will do a transforming work. और मैं ये विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर कुछ हमें बताते हैं वो उसके भीतर हमारे अंदर कार्य भी करने लगते हैं। In each one of us. हम सभी के अंदर। If we have a desire to know the truth of what is a poor in spirit, क्या हमारे अंदर ये बात की जानकारी रखने हम चाहते कि आत्मा में दीन होना क्या होता है? not just as the knowledge, just to explain to somebody, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं ताकि मैं दूसरे को बोल सकूं, but to really be poor in spirit.
whatever that really means. लेकिन सच्चाई में आत्मा में दीन होना क्या होता है ये मैं जान सकूं, The effect what will happen is और उसका प्रभाव क्या होगा आपको पता है, we will be a happy person. हम सबसे आनंदित व्यक्ति होंगे। We will be. We thank God for the happiness that He has given. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो भी आनंद उसने हमें दिया है। But this is the word, as the word of God says, blessed are they who are poor in spirit, लेकिन ये बातें जो यहाँ पर लिखा है, धन्य है जो आत्मा में दीन है, for theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So that is one thing. So now there are some examples of. We can just look at some examples to know how the people who were poor in spirit were there in the word of God. तो हम अभी कुछ उदाहरण देखेंगे जो आत्मा में दीन थे परमेश्वर के जनों के विषय में। One of them is Moses. और उससे सबसे पहला नाम हम लेंगे मूसा का। Moses, we know, was a man full of. It's mentioned that he's full of power and authority when he was a prince in Egypt. और मूसा के विषय में हम जानते हैं उसके पास अधिकारता सामर्थ्य था जो इजिप्ट देश में वो राज्य करता था। But after he ran away to the wilderness of Midian, and we read in Exodus chapter 4 verse 10. और मिद्यानी देश में जब वो वहां के जंगलों में भाग गया, जहाँ हम Exodus 3:11. निर्गमन के अध्याय 3 के 11 में पढ़ सकते हैं। That time he said, the same Moses, the same powerful person became a different man. और तब हम देख सकते हैं वही सामर्थी मूसा एक अलग व्यक्ति बन चुका था। He said, who am I वो कहता है मैं कौन हूँ that I should go to Pharaoh and bring the sons of Israel out of Egypt? जो फिरौन के पास जाकर इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं। He said it. When God said that you have to go there, he came to that place where he realized that he's a nobody. जब परमेश्वर ने उसे एक कार्य दिया तब उसने ये अपने आप में जाना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। He was an eloquent person in speech, but when Exodus 4:10 says, "Oh my Lord, I am not eloquent either before or since you have spoken to me. I am slow of speech." उसके 4 के 10 में हम पढ़ सकते हैं वो प्रभु से कहता है, प्रभु मैं बोलने में निपुण हूँ, न तो पहले था और न जब आपके दास से बात करने लगे हो। Here we see a completely different Moses. तो यहाँ पर हम पूरी तरह से दूसरा मूसा को देखते हैं। And all through his life, we find, even after God, he delivered the people from Egypt, we find a very different man. It's called the meekest, the humblest man on earth. और उसके बाद से मिस्र देश से इस्राएलियों को निकालने के बाद भी परमेश्वर ने के अधीन में रहकर वो किस तरह से आत्मा में दीन व्यक्ति बना रहा। So there we see something of the poor in spirit. और वहां पर हम देख सकते हैं एक आत्मा में दीन होने का अर्थ। If God could change us to be, people who gets transformed like that by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर ये जो एक व्यक्ति को आत्मा के शक्ति के द्वारा पूरी रीति से बदल सकता है। That internally we are, so humble and so humble, and also we have a great need for God. और अंदरी तौर पर हम पूरी तरह से दीन हो जाएंगे, नम्र बन जाएंगे और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत ही भूख रहेगा। That is another quality of being poor in spirit is that we always feel the need for God. और यही दूसरी बात है जो आत्मा में दीन होने का अर्थ क्या कि मैं हमेशा हमें परमेश्वर की जरूरत की सहायता की जरूरत पड़ेगी। Say we want to do some work. सोचो हमें कुछ कार्य करना है for the Lord, परमेश्वर के प्रति, or maybe for anything else, या तो कोई भी काम, and we know some qualities and gifts we have, और हम ये जानते हैं कि कुछ तो दान और वरदान मेरे भीतर है। then are we helpless or are we confident? तो हम उस समय कैसे होते हैं? क्या हम खुद को निर्बल समझते हैं या हमारे अंदर ये होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ? Suppose there is a problem in some family. सोचो कोई परिवार में कोई समस्या चल रही है, then we feel that we have the answer. और हम ऐसे सोचते हैं कि इसका उत्तर मेरे पास है। Perhaps if I go and counsel them, the problem will be solved. और यदि मैं उस परिवार में जाकर कुछ बोलूं तो ये समस्या का समाधान होगा। These are all qualities
which are not poor in spirit. और ये सारे बातें ऐसे लोगों के जो आत्मा में दीन नहीं है. We feel that because of our experience, because of our knowledge, we can do something. हम ऐसा सोचते हैं हमारे अनुभव के कारण, हमारे ज्ञान के कारण हम भी कुछ है. But the one who is poor in spirit will say, Lord, though I have experience, though I have the words to tell, Lord, I am utterly helpless. So that person is poor in spirit. लेकिन जो आत्मा में दीन है वो हमेशा प्रभु से कहेगा, प्रभु मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, लेकिन फिर भी मैं आपके सम्मुख आकर विनती करता हूं कि आप मेरी सहायता करो. I want to be something like that. I am not like that. और मैं ऐसा बनना चाहता हूं, अभी तो वैसा मैं नहीं हूं. So there's another we have heard about William Carey. हमने विलियम कैरी के विषय में सुना है. Everybody has heard about William Carey. Anybody know? Just put your hands up. क्या किसी ने विलियम कैरी के विषय में सुना है? कभी अपने हाथ उठाए. He was a missionary in India. और वो मिशनरी जो भारत देश में कार्य करते थे. Sister who's from Bengal knows it. तो बंगाल से जो बहन है हमारे बीच में, वो उनको जानती है. He did his work in Bengal. और उन्होंने बंगाल देश में काम किया है. And he translated Bible into 6 languages. और उसने बाइबल को 6 भाषाओं में अनुवाद किया है. Full Bible. पूरे बाइबल को. And parts of the Bible in 29 languages. और आधा जो बाइबल के भाग है उसको 29 भाषाओं में उसने अनुवाद कर दिया हुआ है. And in the year 1812, a big fire took place. और 1812 साल में एक बहुत बड़ा आग लगा था. And all his manuscripts got burnt. और उसके सारे जो बनाए थे स्क्रिप्ट वो सारे जल चुके थे. All the work which he did got burnt. और जितना भी काम उसने किया था सब कुछ जल चुका था. So he did not blame the devil. और उसने शैतान के ऊपर दोष न लगाया. He said, I think the Lord has seen how self-confident I have been. और तब परमेश्वर ने मेरे भीतर देखा कि मैं कितने मेरे अंदर से घमंड से फूल रहा हूँ. And you know, when he died, what was written on his tombstone? और जब वो मरा तो उसके कब्र के ऊपर क्या लिखा हुआ था? Born 17 August 1761. और 1761 में उसका जन्म हुआ था. Died June 9th 1834. और उसकी मृत्यु 1834 वर्ष में हुआ था. And then it was written on the tombstone, a wretched, poor and helpless worm. और वो अपने उस कब्र के ऊपर ऐसा लिखा है, एक अभागा और मैं गरीब और निर्बल एक कीड़े के समान हूँ. On thy arms I fall. और तेरे हाथों के आगे मैं गिरता हूँ. This was what this great man about him was written on the tombstone. ये महान इस व्यक्ति ने अपने कब्र के ऊपर ऐसा बातें लिखकर रखा था. So it's all what we think of ourselves. तो ये सारी बातें उस पर निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं. So there are so many other examples. और बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं. We know that Isaiah wrote that woe is unto me, it says in Isaiah 6:5. और यशाया के पुस्तक में हम उसके 6 अध्याय के 5वें वचन में देख सकते हैं. I'm a man of unclean lips. वो कहता है कि हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ. John the Baptist, another man who was so poor in spirit. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो एक व्यक्ति था जो आत्मा में दीन था. John 3:30 said, he must increase but I must और decrease. यूहन्ना 3 में वो कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं. Then we know about a tax collector in Luke chapter 18. और लूका अध्याय 18 में हम चुंगी लेने वाले के विषय में देखते हैं. There was a Pharisee who was very much haughty in spirit. और जो फरीसी था जो वो बहुत ही Proud. जो बहुत ही घमंडी था आत्मा में. But this tax collector said, Lord, be merciful to me, a sinner. लेकिन चुंगी लेने वाले ने कहा कि मुझ पर दया कर, मैं पापी पर, मुझ पापी पर. And he went blessed. और वो आशीषित हुआ. There was a centurion who said, Lord, I'm not worthy for you to
come under my roof, but just say a word and my servant shall be healed. और एक सूबेदार था, उसने कहा कि परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए, आप सिर्फ कह दो और मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। He was a man of authority, having people, at least around 80 people under him. और वो व्यक्ति जिसके पास सारे अधिकार था, उसके अधीन में 80 लोग थे। But he had another opinion about what do you say, opinion about himself. लेकिन उसके खुद के प्रति एक अलग ही दृश्य उसने अपने मन में रखी थी। The Canaanite woman, there was a Canaanite woman who said, Lord, even the dogs eat the crumbs और on the जब table. कनानी स्त्री के विषय में हम सुनते हैं, वहां पर वो कहती है कि कुत्ते भी जो चूर गिरता है वो खा लेते हैं। So these are all examples in the word of God where we see people behaving in very exceptional ways. और यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं जो परमेश्वर के जन हैं, कुछ अद्भुत ही रीति से उन्होंने व्यवहार किया था। And now the Lord wants us to be poor in spirit so that we also can be blessed. लेकिन आज परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं कि हम सब आत्मा में दीन हो, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। The Lord also wants us to be people who have an exceptional spirit. और परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि एक अद्भुत आत्मा हमारे भीतर रहे। If we desire that, then God can lead us there. अगर हम ऐसा आशा रखते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। But if we feel that if it is not so valuable, then nothing will happen. लेकिन हम अगर सोचेंगे कि ये हमारे लिए ज्यादा मूल्य नहीं रखता, तो हमारे लिए वो कार्य नहीं हो पाएगा। But this is what Jesus started the Sermon on the Mount by. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of और heaven. यहीं से यीशु मसीह ने अपने प्रचार का शुरुआत किया उस पहाड़ के ऊपर कि धन्य है जो आत्मा में दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So I want with all my heart to know more about this and really become a partaker of this. तो मैं पूरे आत्मा से चाहता हूं कि इसमें और मैं सहभागी हो सकूं और मैं इसको और प्रति अपने जीवन में इसका अनुभव कर पाऊं। May God help each one of us. तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। सारे वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक जो बातें हैं मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि मैथ्यू चैप्टर 5 और 5:1, मैथ्यू चैप्टर 7:28 उसको कहते हैं कि पहाड़ी उपदेश। याद रखो, कभी भी आप कोई भी पूछे याद रख सकते हो। पहाड़ी उपदेश क्या है? मैथ्यू चैप्टर 5 to 7:28 पहाड़ी उपदेश। यहाँ पर यीशु कई बात अपने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर का राज्य क्या है, या परमेश्वर के राज्य में किस तरह प्रवेश करना है, और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, वहां पर सिखाया गया है। लेकिन हम एक चीज देख सकता है कि हमारा जीवन में कई बार कौन है जो आत्मा में दीन है। नॉर्मली हम सोचेंगे कि कोई धनिक अमीर आदमी दीन है, या कोई गरीब आदमी दीन है, नहीं तो सोचेंगे कि जिसके पास सब कुछ जानकारी है वो दीन है। आज एक वचन हम लोग ने पढ़ा है, एशिया 55:9, मनुष्य का विचार और परमेश्वर के विचार आकाश और पृथ्वी के अंतर है। हम सोचेंगे कि अरे ये आदमी गरीब बहुत अमीर है, लेकिन क्या आत्मा में दीन है? और ये भी सोचेंगे अरे ये स्त्री, ये लेडी बहुत गरीब है, लेकिन ये आत्मा में दीन है। लेकिन यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन कौन वहां पर रहेगा वो बताया। कौन रहेगा? परमेश्वर के राज्य में वो लोग रहेगा जो आत्मा में दीन है। ये नहीं कहा कि धनी लोग रहेगा, गरीब लोग रहेगा, ऐसा नहीं। जो आत्मा में दीन है, यानी वो लोग हमेशा क्या सोचेगा, आत्मा में जो दीन है वो लोग क्या सोचेंगे कि जब भी कभी परमेश्वर के सामने जाते हैं, वो लोग अपने आप को ये महसूस करेंगे कि मैं परमेश्वर के सामने एक धूल और मिट्टी हूं। भाई ने कहा कि बहुत जानकारी है, वचन का जानकारी बहुत है, बहुत आप सामने वाला व्यक्ति को वचन बहुत बांट सकते हो, लेकिन आत्मा में आप दीन रहेंगे, यानी अपने आप को, आपकी हालत आप पहचान लेंगे कि यीशु की उपस्थिति में जब जाते हैं मेरा हालत क्या है। पौलुस भी यही सोच रहे कि जब वो प्रभु के उपस्थिति में गया और वो ये महसूस किया कि मैं सिर्फ धूल और मिट्टी हूं, यानी वो आत्मा की स्थिति, वो लोग कहते हैं कि मैं प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूं, तो वो लोग प्रभु की परमेश्वर के राज्य में, यीशु ने इसलिए कहा कि
जो बच्चे लोगों को पास में बुलाया और कहा कि अपने चेलों लोग वहां पर थे यीशु के साथ, जॉन पीटर सब लोग थे, उनको किसी को भी नहीं बुलाया। परमेश्वर का राज ऐसा है नहीं, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बोला कि परमेश्वर की राज ऐसा बच्चों के लिए जैसा है जो आत्मा में दीन है। तो मैं एक दो वचन है में बहुत प्रोत्साहन है, जो जुना करार में साम्स 51:5 वहां पर डेविड कहता है कि एक बार पढ़ेंगे इसको, साम्स 51:5। देखो एक राजा है और वो प्रभु के सामने इस तरह वो अपने आप को प्रकट करता है कि वो जब इतना बड़ा हो गया, वो ये नहीं बोल रहे कि मैं बड़ा होने के बाद पाप किया हूं, नहीं तो मैं अभी पापी की दशा में हूं, अभी हूं, ये नहीं बोल रहे। वो बोलते हैं कि मैं जब माँ की कोख में हूं तब मैं पाप की दशा में पैदा हुआ हूं। तो ये कितना सोचने की बात है कि हमारा हालत हम पहचान जाते हैं, हमारी परिस्थिति हम पता चलता है कि जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाते हैं। जितना परमेश्वर के करीब आप रहते हैं उतना आप अपने आप को कम समझ पाएंगे। तो कई बार हम घमंडी के कारण हमारा हालत पता नहीं चलता है कि हम कितना घमंडी है, लेकिन जब कभी प्रभु की रोशनी में जाते हैं, प्रभु की प्रकाश में जाते हैं, हमारा हालत पता चलता है कि हम कितना गरीब है। और एक वचन आयुब की किताब में भी आयुब यही कहता है, एक बार पढ़ेंगे आयुब जोब 44। मैं चाहता हूं ये वचन पढ़े आप लोग। जोब आयुब का किताब 40वां अध्याय वर्ष 4। वो क्या बोलते हैं, आयुब क्या बोलते हैं, प्रभु के सामने जाकर वो कहता है कि मैं अपने मुंह में क्या डालता हूं, अपनी उंगली रखता हूं और चुप रहना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरब के देश में आयुब जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, इसकी जैसा कोई धनी व्यक्ति कोई नहीं था। और बाइबल कहती है कि लेकिन वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में सामने जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे होठों पर मैं अपना उंगली रखता हूं ताकि मैं कितना आत्मा में दीन हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत गंभीर बात है कि हम सीखना चाहिए कि हम आत्मा में दीन कैसा बन सकते हैं। एक चीज है, जितना प्रभु के पास जाएंगे, एक ही मार्ग है, जितना हम रोशनी के पास जाएंगे उतना गंदगी हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। मैं हमेशा एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे घर में एक बार मीटिंग हुआ था, मेरा बाथरूम में एक कम वोल्ट्स का बल्ब थी। उस दिन कुछ गेस्ट लोग आ रहा था मेरा प्रेयर के लिए। मैं सोचा कि उस बाथरूम में एक बल्ब रोशनी बहुत दे रहे करके मैंने सोचा कि इसको बदली कर दूं। लेकिन जब मैं इस रोशनी बदली कर दिया, रोशनी तो बहुत ज्यादा आया बाथरूम में, लेकिन उसके साथ मुझे और एक कुछ दिखाई पड़ा कि इसके पहले सालों साल में कभी भी उस बाथरूम में उतना गंदगी नहीं देखा। उतना गंदगी में तब देखा जब नया अच्छा बल्ब डाला, हाई वोल्ट्स का बल्ब डाला। मैंने पहचाना कि अरे प्रभु के साथ जाएंगे तब इसी तरह से होता है कि जब हम प्रभु के करीब जाते हैं हमारे जीवन में ज्यादा कितना गंदगी है तभी ज्यादा दिखाई पड़ता है। जितना करीब हम प्रभु के पास जाते हैं उतना रोशनी हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए हमारी इच्छा ये होना चाहिए कि प्रभु के पास जाना है ताकि हम हमारा हालत को पहचान पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते आज जो कुछ भी हमने सुना। जैसे भाई मैथ्यू ने कहा कि मैं अभी तक वैसा जीवन नहीं देखा, लेकिन मैं चाहता हूँ, डिजायर करता हूँ ऐसा। तो ये सारे बातें जानना जरूरी है कि क्या सचमुच मैं आत्मा में दीन हूं या नहीं। हमारे लाइफ को हमें ही जांचना है, हमें देखना है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो मत्ती अध्याय 11 में लिखा हुआ है, उसका 28 वचन में वहां पर लिखा है। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, क्या हम आत्मा में दीन बनना चाहते हैं, क्या सचमुच चाहते हैं, वी डिजायर। तो यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29 वचन कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तब तुम मन में विश्राम पाओगे। तो जो भाई मैथ्यू ने कहा कि दीन बनने का जो चिन्ह है वो एग्जैक्टली क्या होता है, अपने हृदय के अंदर आनंद आना,
अपने हृदय के अंदर वो जॉय को महसूस करना, दैट इज अ रियल हु इज पुअर इन स्पिरिट, रियल पुअर इन स्पिरिट। हम लोगों के सामने दिखा सकते हैं दीन, लेकिन बाइबल कहता है हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के नजर में हमें दीन बनना है। मनुष्य के नजर में हमें दीन बनेंगे तो आनंद हमें कभी अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। भारी तौर पर हम लोगों को दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज हमें दबाता जाएगा और कभी खुशी हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो जो भाई मैथ्यू ने बांटा, दैट इज रियली एन एनकरेजिंग वर्ड, कि वो एक ही शब्द जो रियल पुअर इन स्पिरिट इज दैट रियल ब्रिंग्स हैप्पीनेस इनसाइड, हमारे अंदर जो आनंद लाता है। यीशु वही कहता है स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन वहां पर 3 चीज कहता है, लेकिन वो धार्मिकता है, आनंद है और वो खुशी है जो हमारे भीतर रहती है। तो आर वी रियल पुअर इन स्पिरिट कैसे मालूम पड़ेगा? जब हमारे अंदर वो आनंद प्रभु ने दिया है वो है या नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह कहता अगर तुमको नम्र बनना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू गॉड। वहां पर वो कहता है कि लर्न फ्रॉम मी। जीसस कहता है मुझसे सीखो। हमको किसी मनुष्य से सीखने की जरूरत नहीं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। हमें गॉड से सीखना है। जब हम जीसस के पास जाएंगे, हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने अपना जीवन कैसा जिया। वो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने वो अधिकार अपने हाथ में नहीं रखा, उसने किसी का न्याय नहीं किया। बाइबल कहता है वो दीन बनता गया, इतना तक क्रूस पर उसने बलिदान किया अपना, वो एक चोर बनकर मर गया। तो सोचो वो कितना नीचा हो गया और परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। तो यीशु कहता है इफ यू वांट टू बिकम हम्बल इन स्पिरिट, लर्न फ्रॉम मी। जीसस के साथ जब हम रहेंगे और उसके साथ फेलोशिप में रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये चेंजेस हम अपने जीवन में देख सकेंगे। क्योंकि बाइबल, एक वचन मुझे याद नहीं आ रहा है, वो ऐसा कहता है जब हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहते हैं, हम उसके साथ एक आत्मा बन जाते हैं। एक आत्मा जैसा उसका स्वभाव है, वो स्वभाव हमारे अंदर वो स्वभाव रहता है। तो हमको सीखना है, अगर नम्र बनना तो परमेश्वर से ही सीख सकते हैं। यीशु खुद कहता है कि लर्न फ्रॉम मी। हमें प्रभु के उपस्थिति में रहना होगा, उसको अपना जीवन समर्पित करना होगा, तब हम जाकर उससे सीख सकेंगे। यीशु कहता है मेरा जुआ पहले उठाओ। अनलेस यू होल्ड दैट, वो जब तक उठाओगे नहीं तुम सीख ही नहीं पाओगे। अपने सेल्फ को डिनाई करो। वो कहता है अपनी इच्छाओं को डिनाई करो। अनलेस यू डू दैट, हम दीन बन ही नहीं पाएंगे। हम कहेंगे हम दीन है, लेकिन जब अपना क्रूस हम उठाएंगे ही नहीं, अपनी इच्छा को नाकारेंगे नहीं, हम नम्र कैसे बनेंगे? अगर हमें नम्र बनना है, यीशु पहले कहता है मेरा जुआ पहले उठाओ, एंड देन लर्न फ्रॉम मी। सबसे पहला जुआ उठाना जरूरी है, वो क्रूस को उठाना जरूरी है, सेल्फ विल को डिनाई करना जरूरी है, एंड देन ओनली वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। उसके बाद हम सीख सकते हैं। और वो वहां पर कहता है देखो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम मन में विश्राम पाओगे। जो विश्राम और जो आनंद और जो शांति की बात हमने सुनी है, यीशु वो कहता है तब तुमको वो मिलेगा। व्हेन? जब हम उसका जुआ उठाएंगे, जब हम उसके पीछे चलेंगे और जब हम अपने इच्छाओं को नाकारेंगे, तब हम उससे सीख पाएंगे और तब हमारे जीवन में कार्य होगा। आमीन। कल मैं सलून में गया था और सलून वाला मुझे बोला कि आप थोड़ा टाइम के बाद आ जाओ, थोड़ा टाइम के बाद आ जाओ। तो फिर मैं सोच रहा था मन में कि या ऐसे क्यों बोला, क्या इसको बिजनेस नहीं करना है या ये नहीं करना है, मेरे थॉट में आ रहा था। और मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा रेस्पेक्टफुली बोलना चाहिए था, मुझे थोड़ा अच्छे से बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं कस्टमर हूँ। तो मैं जब वहाँ से निकला, प्रभु मुझसे वही बात कर रहा था कि इधर हमको ये एरिया में हमको अपने आप को शून्य करना, ये एरिया में हमको अपने आप को दीन करना। हमारे अंदर मैं देखता हूँ कि छोटा छोटा डिजायर हमारे अंदर छुपा है, छोटे छोटे डिजायर छुपा है कि ये सिस्टर इस तरह से बात करना चाहिए, हमको इस तरह से बोलना चाहिए। ऐसा बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। जब परमेश्वर हमको उस चीज को लाइट में लेके आएगा, और ये ऐसा नहीं कि प्रभु हमको बोल रहे कि तुम ये करो, बट जब हम इस चीज को देखेंगे और उस टाइम पर रियली मैं देखता हूँ कि हमको
इम्पॉसिबल लगता है मुझे कितने बार कि प्रभु मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे प्लीज मुझे मदद करो। और मैं देखता हूँ कि जब अब तुम परमेश्वर जब तुम्हारे अंदर एक डिजायर देखता है कि यहाँ पर मैं मरना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं दीन और नम्र होना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली 100% आपको गॉड आपको स्ट्रेंथ देगा और आपको उस तरह यीशु मसीह के जैसा एक्ट करने के लिए, यीशु मसीह के जैसा रिएक्ट करने के लिए आपको सामर्थ देगा। मैंने देखा हूँ। और एक चीज जो हमने अभी सीख रहे थे, पुअर इन द स्पिरिट, मत्ती 5:3 में लिखा है। ये वचन मुझे भी ब्लेस किया काफी टाइम पहले और अभी भी मुझे प्रोत्साहन देता है। कल भी जो शेयरिंग सुना मुझे बहुत ही एनकरेज लगा। और एक मैं NLT ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था कि पुअर इन द स्पिरिट में इस तरह खुद को समझने के लिए कि क्या है एक्चुअली, क्योंकि हम देखते हैं कि सर्मन इन द माउंट में सबसे पहला शब्द यीशु मसीह ये बोल रहा है कि ब्लेस्ड इज द मैन दोज़ हू पुअर इन द स्पिरिट। और NLT ट्रांसलेशन में मैंने देखा दोज़ हू रियलाइज, मतलब जो एहसास कर रहा है कि मैं आत्मा में गरीब हूँ, मतलब वो गरीब है आत्मा में और उसको जरूरत है यीशु मसीह का। और मैं खुद इस तरह से मेरे को समझ में आ रहा था कि कंपेयर टू जीसस, यीशु मसीह के जैसा मैं कंपेयर करके देख रहा हूँ कि मैं कितना गरीब हूँ अभी, मतलब यीशु मसीह के जैसा नहीं, कितना सा अनक्राइस्ट है। तो प्रभु मुझे उस तरह से बनने के लिए मदद करो, उस तरह से जीने के लिए मुझे मदद करो। और लिखा है कि परमेश्वर का राज उनका है। ऐसा नहीं कि तुम परमेश्वर का राज में चले जाओगे, परमेश्वर का राज मतलब एक, जैसे ब्रदर मैथ्यू बोल रहे थे कि एक रहस्य है, और ये बात सच भी है कि ये रहस्य है। ठीक है, हम अपने आप को कभी कभी, जैसे ब्रदर कल जोजी ब्रदर बोल रहे थे कि हम चर्च में लोग मुझे जान रहे, पहचान रहे, मुझे इज्जत दे रहे, मैं अभी चर्च में बहुत पुराना हो गया हूँ। और हमारे अंदर देखते कि हम ये सोचने लगते कि मैं चर्च के अंदर मैं अभी कुछ बन गया हूँ, क्योंकि लोग मुझे ध्यान दे रहे हैं, मुझे एल्डर बहुत इज्जत दे रहा है, मुझे एल्डर मुझे अच्छी से बात कर रहा है। बट हमारा जो रिलेशन परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे औकात में खुद भूल के बैठा हूँ, मैं आत्मा में अभी भी गरीब हूँ क्या प्रभु, मैं वो नीड मेरे अंदर है क्या कि प्रभु मुझे हर दिन हर टाइम जरूरत है। प्रोवर्ब चैप्टर 8 में मैं प्रवचन नहीं पढ़ना चाहता समय नहीं के कारण, उसमें लिखा है कि वहां पर परमेश्वर के सामने आकर बैठकर वो गेट पर परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, और ताकि परमेश्वर से कुछ मिले, वॉचिंग डेली, ऐसा लिखा है। जब उसके करीब हम आके गेट पे सामने बैठते तो हम वहां पर लिखा है कि परमेश्वर, जब मैं कितने बार पढ़ा हूँ तो उसमें लिखा है कि उसके गेट पर आकर, जैसे कि यहाँ पर देखते गेट है, बाहर जाकर हम बैठते, एक रिच मैन आएगा और वो आशा रखता है कि मुझे कुछ मिलेगा, और अपने आप को दीन नम्र झुकाकर बोलते हैं कि मुझे प्रभु दो। इस तरह से हम ये एटीट्यूड परमेश्वर देखता है। हम कितना कभी कम इतना इस चीज में बह जाते हैं कि हम बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, बट हमारा एटीट्यूड कैसा है, क्या प्रभु मैं भले ये सब चीज कर रहा हूँ, पर प्रभु मुझे अभी भी मुझे नीड है, मुझे अभी भी मैं बहुत गरीब हूँ। जब हम अपने आप के अंदर रिच बन जाते हैं कि नहीं अभी मैं तो बहुत रिच हो गया, बहुत मुझे लोग जान रहे हैं, मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, वचन मुझे पता है, काफी सारी चीज पता है, लेकिन परमेश्वर के अनॉइंटिंग या परमेश्वर का ग्रेस हमसे दूर हो जाता है। तो इसलिए मैं खुद के लिए एक चैलेंजिंग रूप में लेता हूँ कि प्रभु मुझे हमेशा अपने आप को दीन नम्र बनने के लिए मदद करो, और मुझे एहसास कराओ कि मुझे हर दिन प्रतिदिन मुझे परमेश्वर के सामने बैठकर मैं मांगू, प्रभु मुझे आपका जरूरत है, मुझे आप चाहिए हो, और आज का दिन मुझे जीना है। मैं कभी प्रे करता हूँ कि प्रभु मुझे मदद करो, आज का दिन मेरा ऑफिस में मैं फेथफुल रह सकूँ या मेरा काम अच्छे से होए। और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर इतना अच्छे से चलाता है, और मैं देखता हूँ कि कितने लोग ट्रेन से जाते हैं, और मेरा काम ऐसा है कभी कभी इतना रिस्की काम है, बट मैं देखता हूँ कि मेरा हाथ कटने से मैंने देखा कि कट सकता था, बट मैं देखा कि परमेश्वर इतना मेरे के लिए वहां पर बचा लिया। परमेश्वर का दया है, सब परमेश्वर का अनुग्रह है। तो ये सब चीज हमको नीड है हमारे जीवन में। हर एक एक्सीडेंट, डेंजर, छोटी छोटी बात है, मैं देखता हूँ कितने बार एक्सीडेंट होने से बच गया मैं एकदम मेरे को कैसा, मेरे को सरप्राइज, मेरे को ब्रेक लगा रहा हूँ, ब्रेक लग गया और सामने वाले भी ब्रेक रोक दिया। ये सब गॉड का, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको नीड है हर टाइम, प्रभु मुझे जरूरत है, मुझे ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि आज का दिन मुझे जरूरत नहीं, बस हो गया मुझे,
मैं अपने आप से, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, फिर हम आउट ऑफ वे जा रहे हैं, परमेश्वर से हम दूर जा सकते हैं। तो प्रभु मुझे इस तरह से जीने के लिए मदद करें। I said, being poor in the spirit, in other words, it means how humble we can be. और आत्मा में दीन होने का दूसरा अर्थ है कि हम कितने नम्र हैं। I will read from Matthew chapter 13, verse 15. और मैं मत्ती आप brother, आप पढ़िए अध्याय हिंदी में। मत्ती अध्याय 13 का 15 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इन या लोगों ब्रदर आप हिंदी में बोलिए। मैथ्यू 13:15 राइट, या मैथ्यू 13 verse 15। 30 और 13 13 ओके। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से तो ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मुंदी कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आंखें से देखे और कानों से सुने और मन में समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। The hearts have done dull, it says over here, because we hear but still our ears are closed. We see but still our eyes are closed. तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, वो कहता है इन लोगों का मन मोटा हो गया है, कानों से ऊंचा सुनते, आंख है लेकिन मुंदी हो गई है। And there is so much of pride, ego, whatever you call it, that has made the heart so dull in front of God. और यहाँ पर हम देख सकते हैं घमंड है, अहंकार है, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इन बातों ने उनके मन को मुंदी कर दिया है, उनके आंखों को मुंदी कर दिया है। We hear the word of God, but we don't receive it, we don't accept it. हम परमेश्वर के वचन को सुनते जरूर है, लेकिन हम उसे स्वीकारते नहीं है और उसका अनुसरण नहीं करते। With our eyes we see everything that's happening, but still we keep our eyes closed. लेकिन आंखों से हम सब कुछ देखते हैं जो हमारे आसपास होता है, लेकिन फिर भी हम अपने आंखों को बंद करते हैं। The reason why is that we don't want to humble ourselves. और ये इसका कारण ये है कि हम अपने आप को नम्र बनाना नहीं जानते। In this last two lines where God is saying, and understand with their heart and turn and I would heal them. और उसके आखिरी शब्द में ऐसा कहता है, ऐसा कानों से सुनो और मन से समझो और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। Lord wants to heal us. Lord wants to heal our hearts. He wants us to come towards Him, so that He wants us that He can make us a humble person. परमेश्वर चाहता है कि हमको चंगा करे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए ताकि वो हमको एक नम्र व्यक्ति बनाए। Because that's why it says in same Matthew 18 verse 1 to 4. और जैसा मत्ती अध्याय 18 के 1 से 4 तक लिखा गया है, उसी घड़ी चेले उसके पास यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को उनके पास बुलाकर बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान बनो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, स्वर्ग के राज्य में वही बड़ा होगा। So what did the disciples ask Jesus? तो यहाँ पर The उसके चेलों ने, disciple says, who is greater in the kingdom of heaven? तो यहाँ पर चेलों ने यीशु से क्या पूछा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? And the example that Jesus gave in front of everybody is putting a small child in the midst of all. और जो उदाहरण यीशु मसीह ने उन सबके बीच में दिया, उसने क्या किया? एक बालक को उनके बीच में खड़ा कर दिया। Because it says in same 18:4, whoever humbles himself like a child is greater in the kingdom of heaven. आगे चौथे वचन में कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान नम्र करेगा, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Our pride, our ego, our self-contained is not going to take us anywhere. हमारा घमंड, अहंकार और खुद को कुछ समझना, ये हमें कहीं पर नहीं ले जाएगा। How big we may think about ourselves, how great we may think about ourselves, हम what कितना position we महान, have, हम कितना महान अपने विषय में सोचते हैं और हमारे जो अधिकार के ऊपर हम कितना सोचते हैं। how I'm serving, what I'm doing, how great jobs I'm doing all over. और मैं कितने बड़े जगह पे काम करता हूँ, मैं किस रीति से सेवा करता हूँ, सब सोचते रहते हैं।
but that unless the heart is not humble, God will surely say that I don't know who you are. लेकिन जब तक हमारा मन नम्र नहीं होगा तो परमेश्वर कहेगा कि मैं नहीं जानता तू कौन है। Church, it's not about what we are, how we are, but it's all about the heart. कलीसिया ये कुछ फर्क नहीं पड़ता हम कौन है और हम क्या है इस पर, लेकिन इस पर कि हमारा हृदय कैसा है। Because God says that I search the heart. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं हृदय को जांचता हूँ। I don't search men from outside, I see the heart. मैं मनुष्य को भारी तौर पर नहीं, लेकिन मैं हृदय को जांचता हूँ। Now the question is for all, including me, how heavy is my heart in front of God? अब प्रश्न ये है मुझको पकड़कर कि मेरा हृदय कितना कठोर है परमेश्वर के सम्मुख, Or how lighter my heart and humbleness is in front of God? क्या मेरा परमेश्वर के सम्मुख मेरा हृदय बहुत ही हल्का है? It is same like the child's heart. क्या Is it the same like the child's heart? बालक के हृदय के समान ही है? क्या So, हृदय बालक के समान ही है हमारा? so we all need to check our hearts, and we need to compare it with the same child where Jesus puts in between and says, unless our heart is like the child, then only we will enter the kingdom of God. Amen. God bless you all. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये मन के दिन के मैसेज हमने सुना। मन का दिन मैंने ऐसा लिया मेरे मन में कि हमारे लिए परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम जब मन में हम ज़रूरत रखकर परमेश्वर की ओर जाते हैं तो हमें परमेश्वर, मैं एक वचन पढ़ती हूँ। मैंने योहा को निरंतर भजन साहित्य 16:8 में लिखा है, मैंने योहा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है इसीलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। तो कभी कभी मैं अपनी परिस्थितियों को, मैं बहुत सारे परिस्थितियों से गुजरी हूँ, बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखाया है, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाया है, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसे परिस्थितियों में से मुझे परमेश्वर लेके गया है। लेकिन मुझे जिस किसी से भी मुझे परमेश्वर ने जिस परिस्थितियों में से लेके जा रहे थे और जिन लोगों से मुझे टकराया परमेश्वर ने तो मैं वो कभी भी मैं उन लोगों को मैं मेरे परिस्थितियों को उनको ये नहीं माना है कि ये परिस्थितियों का कारण वो है, ये है, ऐसा मैंने कभी नहीं माना। प्रभु के सामने ऐसे मैं जाती थी, प्रभु कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ, प्रभु कहीं ना कहीं प्रभु ये मैं ही ऐसी हूँ कि मुझ में इतनी कमियां हैं, आप लोगों के थ्रू मुझे दिखाते हैं। तो ऐसे मैंने कभी कभी ऐसे परिस्थितियां थे मेरे जीवन में जो मैं अपने से कुछ नहीं कर सकती थी कि मैं अपने खुद के शक्ति से मैं निकाल नहीं सकती थी, मैं खुद से ये नहीं करती थी, लेकिन मैं उसमें बहुत स्ट्रगल करती थी। तो एक दिन परमेश्वर ने बोला कि सब चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दो, सारी परिस्थितियां मुझे दे दो। तो मैं परमेश्वर को सारी चिंताएं और सारी परिस्थितियां उनके हाथ में सौंप दिया है, और उन्होंने कैसे मुझे उस परिस्थितियों से छुटकारा दिया है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम परमेश्वर को प्रार्थनाओं में और वचनों के थ्रू मनन करते हैं तो हमें मन में कहीं ना कहीं प्रभु मन में हम दीन होने का वो एक ये होता है कि हमारे परिस्थितियों को दूसरों को कारण नहीं मानते, हम खुद परमेश्वर के पास जाते हैं तो तब परमेश्वर वो हमारी जरूरत को देखता है कि प्रभु आप ही है मेरे को इसमें से निकाल सकते हैं, प्रभु आप ही है मुझे इसमें से स्वतंत्र कर सकते हैं, कि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये सारी बातों से मैं छुटकारा पा सकूं। और प्रभु ने उसमें से कहा कि किया भी है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे आनंद से भर दिया है कि 11 में लिखा है
कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख और सर्वदा बना रहता है। तो मैं अंदर से, मुझे परमेश्वर ने मेरे खालीपन को भर दिया है, मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां दिया है और शांति दिया है कि मैं एक ऐसी लड़की थी कि मैं कहीं भी खुश नहीं रहती थी, कहीं भी किसी से साथ भी मिलती थी तो मैं मिलजुल कर नहीं रहती थी। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे अंदर का खालीपन को भर दिया है। आज मैं परमेश्वर का गर्व से कह सकती हूँ कि वो मेरा चट्टान है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा सब कुछ है, वो मेरा सर्वस्व है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।